Hi everyone, welcome back to Job Karam Shabana and I'm here with a new video. So today's video is going to be a job related videos and आज के जॉब में हम बात करने वाले हैं एक जॉब की जो है एक्सचेंजर की तरफ से. सो एक्सचेंजर इज अगेन हायरिंग एंड दिस विल बी द लिंक एंड यू नीड टू रजिस्टर फ्रॉम हेयर. बट उसके पहले हम जान लेते हैं जॉब के बारे में. सो यू नीड टू क्लिक हेयर, click if you need any assistant on the registration form. So this will guide you to this window. सबसे पहले हम देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में. सो हेयर यू नीड टू गो हेयर एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, द रोल विल बी ऑफ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. So Accenture is hiring for associate software engineer and this is a very good opportunity from Accenture. So सबसे पहले ओवरव्यू देखें. सो ज्वाइन आर टीम दैट इज डेवलपिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग टेक्नोलॉजीज दैट improve the way our clients and the world's work, working in challenging and dynamic environments, using their versatility to create and support technology solutions that meet clients' requirements from analysis to implement. So this is the overview of the company. Next is what would you do. यहाँ पे इन्होंने दे रखा है दैट एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाट यू विल डू. सो डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशंस यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, understand business, deliver that will impact performance and deliver software to those expectations, bake technology trends into solutions, participate in the development of automation solutions, new functionality and technology and integrate them in existing solutions, responsible for incident resolutions and support extend to customers through voice interactions, email or chat or remote support. अब यहाँ देखते हैं what they need. So we would love you to have ability to anticipate and resolve a business issue and agility, multidisciplinary and versatile with aptitude to learn and apply new skills faster, good analytical and problem solving skills and proficient in verbal and communication skills, deliver code to time and quality expectations and participate in peer reviews, take ownership of the successful implementation of the solution, support infrastructure operations and or manage delivery for IT production system and services, and flexibility to relocate for project deployment to any part of India and work 24/7 shift basis business requirements. So these are the requirement. एंड अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ABAP डेवलपमेंट on HANA, CDS, AMDP, performance analysis, experience or knowledge in configuration, customization of Salesforce.com applications, good working knowledge in J2EE and full stack development, and knowledge and development experience of .NET, ASP.NET और ASP.NET MVC. इसमें से आपको आपके पास कोई भी नॉलेज है then you will be preferred for this job. So these are the requirement and the designation for the job. अब हम देखते हैं eligibility criteria के बारे में. So they are hiring for full-time program in BE, BTech, ME, MTech, MCA and MSc. सारी branches में apply कर सकती हैं and they are hiring for 2020 and 2021 pass out. So if you are the one who have passed out in 2020 or 2021 and you have done BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, सारी branches apply कर सकती हैं. So no active backlogs both during applications and at the time of onboarding. आपका कोई backlog नहीं होना चाहिए and maximum 1 year gap in education post 10th standard till completion of graduation. एक साल का year gap आप allow है यहाँ पर.
और अगर आपने कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एक्सेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन लास्ट 3 मंथ, अगर आपने लास्ट 3 मंथ में एक्सेंचर की ड्राइव में पार्टिसिपेट करा है, रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करा है, देन यू विल बी नॉट एबल टू फिल दिस फॉर्म और apply for this drive. And work permit should be an Indian citizen. Bhutan and Nepal nations can work in India without a need of obtaining a visa or to work. All other foreign nationals require work visa or an OCI PIO card to work in India. ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं. अब ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. असेसमेंट डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं. सो असेसमेंट प्रोसेस ऐसा है दैट इफ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल टू इनविटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट. आपने रजिस्टर करने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं देन यू विल रिसीव असेसमेंट ईमेल, जहां पर असेसमेंट की डिटेल्स होंगी आपकी. एंड द असेसमेंट इन शेड्यूल्ड इन 2 स्टेजेस एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन दी शेड्यूल टाइम. वो आपको एक टाइम देंगे, उस टाइम में आपको कंप्लीट करना है. You will get 20 minutes mock or practice assessment. Mock assessment is mandatory and it will ensure that you have right hardware, software and internet, and the assessment will help you to get an experience of the assessment. सो 20 मिनट्स का यहाँ पर मॉक असेसमेंट होगा. उससे 2 चीज़ें होंगी. दे विल चेक योर सिस्टम लाइक आपका माइक्रोफोन और वेबकैम सारा कुछ ढंग से काम कर रहा है या नहीं, एंड यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द एक्चुअल असेसमेंट. सो आपको मॉक असेसमेंट देना कंपलसरी है. अब जो मेन असेसमेंट है उसकी बात करते हैं. सो सबसे पहले आपका होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, जहां पर आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए. And cognitive assessment includes 50 questions on English ability, critical reasoning and problem solving and abstract reasoning. ये 50 questions आपको इन 3 टॉपिक से आएंगे. Then you will have technical assessment includes 40 questions on common applications in MS Office, pseudocode and fundamentals of networking, security and cloud. So बेसिकली आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और आपके पास 90 क्वेश्चंस होंगे. 50 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉग्निटिव, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्निकल विच आर टॉपिक्स विल बी कॉमन एप्लीकेशंस एंड MS ऑफिस, pseudocode and fundamentals of network and security cloud. So cognitive and technical assessment result will be notified within 5 to 10 minutes post completion. You are advised to remain seated and await result. Coding assessment will commence immediately post result notification. तो अगर आप कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट क्रैक करते हैं, उसमें पास होते हैं, तो उसी टाइम पे लाइक विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका रिजल्ट आने के बाद कोडिंग असेसमेंट स्टार्ट होगा. सो यू आर रिक्वायर्ड टू मीट दी सेक्शन एंड सब सेक्शन कट ऑफ इन आर असेसमेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर राउंड. सो सभी सेक्शंस, ईच सेक्शंस में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी होगा एंड ओवरऑल कट ऑफ भी होगा. तो आपको सारे सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना है. कैंडिडेट मस्ट पार्टिसिपेट इन कोडिंग असेसमेंट मैंडेटरी पोस्ट क्लियरिंग कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट. आपको कोडिंग असेसमेंट देना मैंडेटरी है. एंड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्लियर कोडिंग एंड टेक्निकल असेसमेंट और फेल to participate in our assessments, the process will end there for their candidates. So अगर आप cognitive and technical assessment में फेल होते हैं then आप वहीं से प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे. कोडिंग असेसमेंट की बात करें, सो द ड्यूरेशन फॉर दिस असेसमेंट विल बी 45 मिनट्स. यू विल गेट 2 क्वेश्चंस विच मस्ट बी सॉल्व्ड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, जो कि है C++, .NET, जावा और पाइथन. 45 मिनट्स में आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं यूजिंग C++, .NET, जावा और पाइथन. तो इनमें से आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसको यूज करके आप कर सकते हैं. अब अगर आप कोडिंग असेसमेंट क्लियर करते हैं देन यू विल रिसीव इन सेपरेट ईमेल फॉर कम्युनिकेशन असेसमेंट. आपका थर्ड असेसमेंट जो होगा दैट विल बी योर कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड द ड्यूरेशन फॉर दिस असेसमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स. सो आधे घंटे का आपका ये टेस्ट होगा एंड यू विल रिसीव इन सेपरेट ईमेल विद टाइमलाइंस एंड लॉग इन डिटेल्स टू पार्टिसिपेट इन दिस असेसमेंट. एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट विल एक्सेस यू on the below mentioned parameter, that are sentence mastery, vocabulary, fluency and
प्रोनाउंसिएशन। सो जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट, उसमें भी कम्युनिकेशन असेसमेंट वाज देयर। सो सारे टॉपिक्स और सारा असेसमेंट सेम रहेगा फॉर कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट विल बी योर लास्ट असेसमेंट, या यहाँ पर मॉक असेसमेंट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है सिस्टम की, दैट विंडोज 10 एंड 8 वो रहेगा ओनली, एंड मशीन लैपटॉप और डेस्कटॉप ही आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन नॉट यूज़ मोबाइल और टैबलेट, एंड वेबकैम एंड माइक्रोफोन शुड बी मैंडेटरी, एंड 4 GB प्लस रैम होना चाहिए, i3 5th जनरेशन, ये सारी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। एंड सो अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप या डेस्कटॉप, देन यू नीड टू अरेंज दिस। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर एग्जाम के लिए दी गई हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस एग्जाम, देन प्लीज़ once you should go through these details, because you will get idea like what requirements are there for the assessment। यहाँ पर हमने बात की असेसमेंट की, सो देयर विल बी 3 असेसमेंट, एंड अगर आप कम्युनिकेशन असेसमेंट में भी क्लियर कर लेते हैं, देन यू विल हैव योर इंटरव्यू। सो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले यू विल रिसीव एन ईमेल फॉर एक्सेंचर विद डिटेल्स टू रजिस्टर ऑनलाइन। सो दिस लिंक विल बी योर रजिस्ट्रेशन लिंक। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आपको अप्लाई करना है। एंड so when you start registering for this drive, you can go through all these details. They have given here so many details for registration. अगर आप कहीं पर भी फंसते हैं रजिस्ट्रेशन करते टाइम, देन आप इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, सो यू विल गेट इन क्लैरिटी अबाउट इट। अभी हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सो हेयर दे हैव गिवन हाउ आपको नाम कैसे देना है, आपका फोटो कौन सा वाला देना है, और गवर्नमेंट आईडी कार्ड कैसे देना है, ये सब कुछ। यू नीड टू क्लिक हेयर आई एम नॉट अ रोबोट, एक कैप्चा पे क्लिक करके यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सो द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल ओपन, एंड यहाँ पर ये एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डायरेक्ट हायरिंग है। सो द जॉब रोल इज गिवन, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जाके देख सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा ऑलरेडी। सो यहाँ से आपको आपने कहाँ से सुना इस जॉब के बारे में, वो सिलेक्ट करना है। देन यू नीड टू गिव योर ऑल दी पर्सनल डिटेल्स, यार एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है आपको, और सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ सबसे नीचे आके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट कर देंगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद, देन यू विल रिसीव एन ईमेल। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं इस असेसमेंट के लिए, देन यू विल गेट एन ईमेल फॉर दैट टू। सो अगर आप आगे लाइक रजिस्ट्रेशन के बाद असेसमेंट के लिए लाइक सिलेक्ट होते हैं, तो कंपनी आपके ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करेगी। सो यू विल नीड टू चेक योर ईमेल ऑन डेली बेसिस, बिकॉज यू डोंट नो कब आपको असेसमेंट का लिंक आ जाए, और आपको जो टाइम दिया गया है उसी टाइम में असेसमेंट को कंप्लीट करना है। Okay, so that's all for the hiring. If you talk about the syllabus, and like you know the selection process, you will have 3 assessment. Then after clearing your assessment, आपका interview होगा, and if you crack the interview, then they will offer you the job of associate software engineer. Okay. सो असेसमेंट के लिए सिलेबस की बात करूँ, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड अगर आप 2020 और 2021 पास आउट हैं, देन प्लीज डू फिल दिस like registration and register for this drive, because this is a very good opportunity coming from Accenture. So इस ड्राइव के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।